Hello everyone, welcome to the BH Law Entrance Exam. Today, in this session, we are going to solve this particular RC of reading comprehension. So, there will be a passage followed by five questions. These five questions, before that, coming to these questions, I will be explaining how to skim read the passage and how to actually extract the information in case there is too much of, complex factual data sandwiched in the passage, and how to take out what is important and what is not important, and skim read. Thereafter I'll be explaining how to eliminate the right option choices and the wrong option choices, and to select the right option choices. How can you better your strengths at that in case there are two confounding options, and which is the most appropriate answer. We'll be learning how to choose that answer as well. Not just that, I'll be also explaining you as to what to look for in the passage and what to avoid in the passage, like what information is redundant. Okay, so without much ado, we will be commencing with the passage. And okay, so always develop an eye before starting to read the passage from in the 2024 elections. पहले always try to understand कि ये इसका source दिया कहाँ से है. Okay, always see, for example, this is a political review. Possibility can be, if it is a political review, maybe it can be a book review, maybe it can be from a research scholarly text, sort of things. And then also try to look at what the title is. So daughter of him, wife of him, gender analysis of women's representation in 2024 Pakistan general elections. Without reading the passage, you have understood what the passage is talking about. Look, if you analyze the previous year questions of CLAT, they have been giving sources from where they have been doing the edits and the revisions, and giving the particular snippet of the passage. Try to develop an eye for these things, and to look, ये information कहाँ से ली गई है. तो you are, ये पहले देख लो, बाद में देखने से पहले. तो you will get a very fair idea of अच्छा कौन सा genre का passage है. All right, this is some maybe feminist kind of passage, socio-political issue के बारे में बात कर रहा है. All right, you will get to know a lot of information in that particular way, right? Apart from that, try to understand कि अच्छा passage, ओके, आपको इससे जॉनरा पता चल जाएगा. आपको पता चल जाएगा कि पैसेज में किस टाइप का कंटेंट हो सकता है, ऑथर की ओरिएंटेशन क्या है, और लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो दिस इज बाय द वे बेस्ड अपॉन द लेटेस्ट क्लैट पैटर्न जो अभी अभी हुआ है. क्वेश्चंस उसी से इंस्पायर्ड है काफी हद तक. या सो नाउ विल बी कमेंसिंग टू रीड द पैसेज. आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इन्फॉर्मेशन तुम अवॉइड कर सकते थे एंड क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन कैसे देख रहे हैं. देखो, in 2024 elections, only 11% of the total contesting candidates were women. Women faced immense barriers as they voted and participated in the electoral process due to social pressure, unfulfilled quotas, socio-economic structural problems, labor exploitation, and the repeated failure of mainstream political parties in fulfilling their promises to women. एंड फर्स्ट पर्टिकुलर लाइन आप पढ़ोगे, सो यू विल रियलाइज कि अच्छा व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे आर टॉकिंग अबाउट. दैट देर आर इवन मतलब व्हेन अ वुमेन आर वोटिंग पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन प्रोसेस, एंड देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स एंड why these problems are happening? It is because maybe because of the social pressure, unfulfilled quota system that is there, socio-economical and structural problems that exist, and all of that. So, here, so you have here understood, okay, problems क्या क्या है, किस रीजन से है. क्या ये लाइन इंपॉर्टेंट है? यस, हो सकता है पॉसिबली ये लाइन इंपॉर्टेंट हो. नाउ अंडरस्टैंड, आप हर लाइन तो याद नहीं रख सकते हो, राइट? सो व्हाट इज द मोस्ट प्रूडेंट वे टू अंडरस्टैंड हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं. थंब रूल, नेवर एवर इनिशिएट रीडिंग द पैसेज फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. ऑलवेज पैसेज के एक्सप्लेन करने की कोशिश करो. पैसेज कहाँ से है, तुम्हें उसका टाइटल पढ़ने की कोशिश करो, उसका सोर्स देखने की कोशिश करो. मे बी you'll come to know a lot about author and or the orientation. Thereafter, always develop an habit कि हमेशा यू नो तुम्हारी ये आदत है कि तुम हमेशा पहले क्वेश्चंस को देख रहे हो, क्वेश्चंस में से कीवर्ड निकाल रहे हो, उसके बाद पैसेज पे जा रहे हो. ओके, नेवर डू द
फॉर्मर पहले, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट एक्चुअली में है, क्या इंपॉर्टेंट एक्चुअली में नहीं है। अब क्या ये लाइन या क्या ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ दी है, अनफुलफिल्ड कोटा वाली, सोशो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स वाली, लेबर एक्सप्लॉयटेशन वाली, क्या ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है? न- ये तुम्हें पता ही नहीं चलेगी। सो इन दैट केस ऑलवेज फर्स्ट रेफर टू व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू। अंडरलाइन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पैसेज, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, तुम्हारा पेन एंड पेपर का एग्जाम है, तो हमेशा मेक यूज ऑफ दो रिसोर्सेज दैट हैव बीन गिवन टू यू। ओके, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर वन पूछ रहा है, व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट दैट ऑथर इंटेंड्स टू पुट फोर्थ। सो ये तो क्लियर है। व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, ऑल राइट। विच ऑफ द वर्ड हैज बीन यूज्ड एज बिक्वेस्ट। नाउ सी, यहाँ पे उसने तुम्हें कंटेक्चुअल मीनिंग तो पूछा नहीं है, सो बेसिकली यहाँ तुम्हें सीधे सीधे मतलब पता होना चाहिए। तुम यहाँ पे इवन अ कंजेक्चर भी नहीं लगा सकते कि बिक्वेस्ट का मतलब क्या हो सकता है, राइट। नो लुक, इन दिस पर्टिकुलर पैसेज आपको अगर यहीं पे पता होगा तो आप यहीं पे मार्क कर सकते हो कि अच्छा बिक्वेस्ट का मतलब क्या है, क्या नहीं है। ओके, इसको भी पता लगाने की ट्रिक है। जैसे मैं आऊंगी इस पे, आई बी एक्सप्लेनिंग यू कि कैसे आप पता लगा सकते हो कि बिक्वेस्ट का मीनिंग इन चार ऑप्शंस में से क्या हो सकता है, इनकेस आपको नहीं पता है तो। राइट, ऑब्वियसली बिक्वेस्ट कोई फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड तो है नहीं, आर्किक वर्ड का यूज है, तो कुछ मतलब हो सकता है ना कोई दिक्कत हो, तो आपको समझने में, सबको नहीं पता होगा, ठीक है। तो आपको एलिमिनेट करना आपको सिखाऊंगी, अप्रोच बताऊंगी, ऐसे आप व्यू कर सकते हो ऑप्शंस को इन केस ऑफ ऐसा वर्ड है। बट हमेशा मेक इट अ हैबिट, आप इतना रीड कर लो और इतना ज्यादा वोकैबुलरी यूज, प्लीज 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 स्टार्ट सॉल्विंग वर्ड पार मेड इजी, बहुत ही कमाल की बुक है। ट्राई लर्निंग वर्ड फ्रॉम निमोनिक्स, ट्राई लर्निंग वर्ड बुक्स, वर्ड कार्ड से, वर्ड कोच से। ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ ट्राई टू अंडरस्टैंड रीडिंग करने से कैसे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकाल सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रूट वर्ड से कैसे तुम गैस लगा सकते हो कि वर्ड का मीनिंग क्या होगा, राइट। ट्राई पार्टिसिपेटिंग इन ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज, वाई? बिकॉज आप हर वर्ड का मीनिंग याद नहीं रख सकते, पर अगर आपको उसका रूट वर्ड पता है तो आप एक गैस लगा सकते हो कि अच्छा इसका रूट वर्ड है तो ये होगा, राइट। सो हाउ टू डेवलप वोकैबुलरी, इसकी अपनी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आपको पहले, आई एम राइटिंग इज, प्लीज प्लीज प्लीज, आपके कंपटीशन ये चीजें कर रहे होंगे, आपको भी करनी है। फॉर अंडरस्टैंडिंग प्लीज, एक बुक है वर्ड पार, वर्ड पार, वर्ड पार मेड इजी। ट्राई टू सॉल्व दिस बुक, अंडरस्टैंड कि ये बुक क्या पूछ रही है, ठीक है। ट्राई गोइंग फॉर द रूट वर्ड्स, ठीक है। गूगल पे आपको एक जीआरई की रूट वर्ड्स की जीआरई रूट वर्ड्स की पूरी एक बुकलेट मिल जाएगी, सो ट्राई टू गो थ्रू दैट, बहुत अच्छी काम की चीज़ है आपके लिए। ट्राई ट्राई लर्निंग, ट्राई रीडिंग अ लॉट, ठीक है। ट्राई रीडिंग एंड उससे कंटेक्चुअल मीनिंग निकालने की कोशिश करो, बिकॉज क्लैट में जनरली आपसे कंटेक्चुअल मीनिंग पूछते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज, ठीक है, जहाँ पे वोकैबलरी की चर्चा हो रही है। एंड रीड न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ योर वोकैबलरी, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जैसे कि ऑब्वियसली फेमस न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं आपको, जैसे कि द हिंदू, या फिर और यू कैन रीड इंडियन एक्सप्रेस एज वेल। यू कैन रीड लॉट ऑफ एडिटोरियल्स, एडिटोरियल्स आपका बहुत डेवलपमेंट करते हैं। प्लीज रीड एडिटोरियल्स, प्लीज रीड योर एक्सप्लेनर्स, एक्सप्लेनर्स भी आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करते हैं, उनमें भी बहुत अच्छी खासी वोकैबुलरी होती है। आप एक अनुमान लगा सकते हैं एक्सप्लेनर्स में कि क्या होगा क्या नहीं, और आपको समझ में आएगा इससे। तो ट्राई टू यूज दीज सोर्सेस दैट यू हैव टू डेवलप अ पावरफुल वोकैबुलरी विद यू, ठीक है। सो या विद दैट इन माइंड, ऑलवेज बी वेरी वेरी माइंडफुल कि आप हमेशा कोई टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट हैं, आपको इजीली इन इन पे मार्क्स स्कोर मिल जाएंगे। आप बिना पैसेज पढ़े इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं अगर आपको मीनिंग पता होगा। प्लीज इन क्वेश्चंस के मार्क्स को ऐसे मत छोड़ दीजिए। कभी कभी आप डायरेक्ट क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं एक बारी आप, लेकिन आप समझिए अगर आप ये वोकैबुलरी सीख जाएंगे तो आपको कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हेल्प करेगी, कहाँ कहाँ वोकैबुलरी यूज होती है। वोकैबुलरी आपके टोन क्वेश्चन में यूज होती है, अगर कोई क्वेश्चन आता है वो टोन का, सो दैट इज अगेन अ वोकैब क्वेश्चन। सो ट्राई टू बिल्ड अप योर वोकैबुलरी, ट्राई टू बिल्ड अप योर इडियम्स, ठीक है। prepositions, prepositions अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, prepositions भी होते हैं आपके, तो आपको सीखना होगा कि अच्छा अगर ये लिखा है कॉल्ड ऑफ, तो कॉल्ड ऑफ का क्या मतलब है, राइट। आप इडियम्स, इसलिए भी मैं कह रही हूँ इडियम्स के लिए, क्योंकि ये आपको ये सब चीजें सिर्फ क्लैट में इतना नहीं आती हूँ, मे बी इडियम्स नहीं आते हूँ, बट एलिट में आते हैं, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का पेपर बनेगा तो ये सब चीजें आएंगी, तो आपको इसके लिए वोकैबुलरी, इडियम्स, एंड ऑल्सो ट्राई टू लुक एट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिनोनिम, एंटोनिम्स आपको आने चाहिए। आपको
वन वर्ड वगैरह ये सब भी आने चाहिए, राइट? ऑल ऑफ दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ट्राई टू डेवलप एन आई फॉर दीज थिंग्स। आप इनको अभी से सीखते चलिए। अगर आपके लिए पैसेज डिफिकल्ट करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो पैसेज बहुत लेंदी कर दिया हो, और पैसेज लेंदी कर दिया हो तो उसकी स्किम रीडिंग की टेक्निक है जिसके बारे में हम अपने आगे वीडियो सेशन से बात करेंगे, इनफैक्ट इस वीडियो सेशन में भी बात करेंगे। ये जो मैं आपको टेक्निक सिखा रही हूँ ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पैसेज में आखिर क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। आपके लिए रेलेवेंट वही है कि जो क्वेश्चंस पूछे आप उनको आंसर करोगे। तो ऑब्वियसली डेवलप योर आई फॉर द क्वेश्चंस, looking at the questions, not at everything in the passage that is given is not important for you. वो you have to just answer the questions and move forward। ठीक है, तो हो सकता है पैसेज बहुत डिफिकल्ट भी हो, लेकिन वो आपके क्वेश्चन उस पे नहीं आया है, वाई टू वेस्ट योर टाइम देयर। ओके, पैसेज अगर लेंदी है तो वो डिफिकल्ट हो सकता है, एंड पैसेज में अगर डिफिकल्ट वोकैबुलरी का वो यूजेज है तो वो डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आपने वोकैबुलरी केटर कर ली है, व्हाट्सो एवर लेवल यू आर, ट्रस्ट मी, आप चाहे कोचिंग वाले बच्चे जा रहे हो, चाहे वो बच्चे फैंसी आईसीएससी आईबी स्कूल से पढ़ रहे हो, या सीबीएसई हो या एमपी बोर्ड हो, अगर आपने ये एक चीज सीख ली है वोकैबुलरी, आपको एलिट और क्लैट दोनों में बहुत हेल्प होगी। आपको 3 सेक्शंस हैं, तीनों सेक्शंस में भर भर की रीडिंग आने वाली है। आगे चल के भी आपको कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। एंड यस, जब भी क्वालिटी का पेपर आता है उसमें वोकैबुलरी, अगर स्टैंडर्डाइज वोकैबुलरी के टर्म्स होते हैं, आपको वो सीखना पड़ेगा। ट्राई रीडिंग सर्टेन बुक्स, ट्राई रीडिंग लॉट ऑफ वेबसाइट्स। आई कैन सजेस्ट यू फ्यू वेबसाइट्स एंड गुड गुड वेबसाइट्स जहाँ पे आप जॉनरा बेस्ड रीडिंग कर सकते हैं। आई पुट दैट इन द पॉसिबली टेलीग्राम चैनल पे, मैं अपडेट करती रहूंगी व्हाट ऑल वेबसाइट। प्लीज जॉइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। ये सारे क्वेश्चंस की लिस्ट भी आपको बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आ जाएगी। ट्राई टू लुक फॉरवर्ड उन क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस को रिसॉल्व करने की। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल बी गिविंग रिप्लाईज टू इट पर्सनली। एंड ऑल्सो रही बात वेबसाइट की, आई बी शेयरिंग फ्रॉम कहाँ कहाँ से आप कहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हिस्ट्री का कुछ पढ़ना है, यू कैन स्टडी फ्रॉम हिस्ट्री टुडे। यू वांट टू स्टडी फ्रॉम सोशियोलॉजी, यू कैन स्टडी फ्रॉम डूइंग सोशियोलॉजी। इफ यू वांट टू स्टडी समथिंग फाइनेंस के, तो आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। ठीक है, ट्राई रीडिंग द एडिटोरियल्स एंड एक्सप्लेनर्स ऑफ दैट। अगर आपको अच्छी रीडिंग करनी है तो आप एओन एसेस पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको अच्छे फिलोसफिकल टॉपिक्स मिल सकते हैं। आप सिंपली साइकोलॉजी ये भी पढ़ सकते हैं। ट्राई टू लुक फॉरवर्ड टू जॉनरा बेस्ड रीडिंग, ताकि आपके ये सब चीजें फेमिलियर हो जाएं, आपके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं रहेगा। अगर कोई पैसेज ऐसा आता है जो आपको पता है, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। आपको हर चीज डाइवर्स रीडिंग, मेक इट अ हैबिट ऑफ एटलीस्ट एक या दो आर्टिकल्स रोज पढ़ें फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन। यू कैन रीड डाइसेक्ट, यू कैन रीड डाइसेंट, यू कैन रीड मे बी रीडर्स डाइजेस्ट, यू कैन रीड फ्रॉम इंडिया टुडे। पहले आप वो चीजें से स्टार्ट करिए रीडिंग करना जो आप पसंद है। ओके, आप उनसे स्टार्ट करिए, फिर आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे मूव करिए। टारगेट बनाइए कोई एक जॉनर जो आपको पसंद नहीं है, आप उससे पढ़ेंगे। एंड उसके बाद ग्रेजुअली आप कोशिश करिए, वीकली टारगेट बनाइए कि इस पर्टिकुलर जॉनरा का तो मैं इतने जॉनरास को तो मैं वीकली पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो रीड सम बुक्स आपको जो इंटरेस्ट करती हैं, बिकॉज बुक्स से भी आपको नॉलेज मिलेंगी। एक्सप्लेनर्स एंड एडिटोरियल्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ट्राई टू रीड फ्रॉम बोथ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, पर न्यूज़पेपर आप एक ही पढ़िए। अगर आप एक भी मतलब खबरों के लिए, जीके सेक्शन के लिए आप एक ही पढ़िए बस। यस, जितना आप रीड करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। वोकैबुलरी बिल्डअप कर लीजिए। पैसेज डिफिकल्ट होगा जब अगर उसकी वर्ड्स डिफरेंट होंगे, और अगर आपने वोकैबुलरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपसे टोन वर्ड्स बनेंगे, आपसे वर्ड मीनिंग्स बनेंगे, आपसे कॉम्प्लेक्स पैसेजेस रीड करते बनेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स वोकैबुलरी पे डायरेक्टली बेस्ड होता है। ट्राई टू बिल्ड इन दैट, बिकॉज आपका कंपटीशन हो सकता है काफी इस पे मेहनत कर रहा हो, इट इज इजियर फॉर देम। ठीक है, जो आपको हो सकता है आपकी वोकैबुलरी इतनी स्मार्ट ना हो, इतनी अच्छी नहीं हो, बट उनके लिए हो सकती है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको इन चीजों पे ध्यान देना है अभी से। ठीक है, ऑल राइट। सो नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, सो without further ado, we'll be commencing with the next set of questions जो कि हैं पैसेज को रीड करने से पहले। So question 4 is asking what is the contradiction laid by in the following paragraphs by the author. Question 5 is what is the anomaly that author is speaking about in the pre Imran Khan regime. So अगर आप देखोगे ये एक direct question हो गया, right?
सो इसमें आपका फोकस होना चाहिए, कीवर्ड है प्री इमरान खान रिजाइन पे। जहां ये दिया है ना आपको उस लाइन को दिमाग में रखना। व्हाट इज द कॉन्ट्रडिक्शन द फॉलोइंग पैराग्राफ। लुक दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे फील यार अभी मैं कैसे इसको इस पे फोकस करूं, मतलब मुझे तो पता भी नहीं है इन क्वेश्चंस पे कि इनमें पूछा क्या जाएगा वगैरह वगैरह। डू नॉट वरी, आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा जब आप इंपॉर्टेंट रीडिंग पढ़ोगे। ऑब्वियसली नॉट दैट बी डिफिकल्ट, इतना ज्यादा आपके लिए पैसेज पढ़ते हुए आपको चीजें का वो हो जाएगा रियलाइजेशन, राइट। चलिए, सो वी आर कमेंसिंग विथ रीडिंग दिस थिंग इन 2024 इलेक्शंस। हमने लाइन पढ़ी थी अभी कि सोशल प्रेशर्स एंड अनफुलफिल्ड कोटास आर द रीजंस जहां पे वुमेन आर फेसिंग बैरियर्स। ठीक है, द लास्ट कंडीशन इन पर्टिकुलर सिग्नल टू वुमेन दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर आइदर अनेबल टू और अनविलिंग टू गिव वुमेन अ turnout among those voters and have decreased significantly from 46.5 percentage to this percentage. The decrease in women out in turnout represents a reversal game of gains by the women voters and candidates since the restoration of democracy in Pakistan in 2008. Now, रुक, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, so in this entire paragraph, there are so much of data given, right? 49.8% to 41%. Now look, you do not need to read this data. It is redundant for you. What is important is कि वो इस डेटा से आपका इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, क्या डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। सो इट इज डिक्रीजिंग। व्हाट इज डिक्रीजिंग? अ वुमेन टर्न आउट अमंग वुमेन वोटर्स। सो द वोटर्स जो वुमेन आ रही है दैट हैज डिक्रीज द ओके। अब वो आगे बात करते डिक्रीज इन वुमेन टर्न आउट रिवर्सल गेम्स बाय वुमेन वोटर्स एंड कैंडिडेट्स इन द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, numbers are not that important to you, facts are not that important, skim, do not pay attention to them, understand what idea, why have they been placed, they are placed कि वो एक डिक्रीज बताना चाहते हैं, एक आइडिया देना चाहते हैं। सो ओके, skim, learn to know what is how to infer from the data। तुम्हारे को डेटा दिया है ना, तो डेटा का इन्फ्रेंस भी दिया होता है कि अच्छा डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है। तो आपको सिर्फ यू हैव टू जस्ट लुक एट वर्ड्स जो कि आपको डायरेक्ट सीधी सीधी बातें समझाएं। ठीक है, उसने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई दी है कि क्या है। सो लेट अस जस्ट, उसने बोला वोटर टर्नआउट तो कम है, रिप्रेजेंट, ठीक है, वुमेन रिप्रेजेंट से रिवर्सल गेन्स, ये सब चीजें कम, प्रॉब्लम उसने बताई दी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एज अ पॉलिटिकल पार्टी स्पेक्ट्रम मोर पोलराइज एंड प्रो इमरान खान एंड एंटी इमरान खान factions, women representation issues were not given space in the mainstream discussion। ओके, अब देखो प्रो इमरान खान पे क्वेश्चन आया था तो वो अपने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो लाइन को आपको देखना है। डिस्पाइट दिस सेवरल इंपॉर्टेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैव आल्सो अकर्ड। नाउ ऑथर इज सेइंग हाँ ठीक है डिस्कशंस नहीं हुए बट देयर हैव बीन सम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। ठीक है, क्या यहाँ से कॉन्ट्रोडिक्शन कुछ आ रहा है? आगे देखते हैं, क्योंकि पहले ऑथर कुछ और बात कर रहा है, आगे कहीं वो दिशा कहीं और मोड़ रहा है। तो लेट अस सी। फॉर द फर्स्ट टाइम अ वुमन फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी कमिटी वाज चोजन बाय अ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी टू रन फ्रॉम एन अनडिजर्व्ड सीट। The number of registered women voters rose and the gender gap voters also further fell। ओके, यहाँ पे वो एक अच्छी चीज बता रहा है, उसने कहा कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो वुमेन बढ़ गए थे। ठीक है, एंड एक वुमेन सिलेक्ट हुई थी फ्रॉम मेन स्ट्रीम पार्टी। पाकिस्तान टुडे रिपोर्ट्स दिस मेनी कैंडिडेट्स इन दिस नेशनल असेंबली, ओनली 12 managed to win respective constituencies। ओके, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आप इस डेटा का क्या कर लोगे? विनिंग कैंडिडेट्स लिस्टेड इन अपेंडिक्स, 12 कैंडिडेट्स एंड 10 कैंडिडेट्स आर लिंक्ड टू पॉलिटिकल powerful male politicians as daughters, wives, and niece। Among women candidates, major political parties who lost their prominent names and women who were linked to powerful male politicians। ठीक है, such as example। Now again, you have understood the idea they are talking about। जो भी women representation हुआ था, यानी कि जो भी women जीत के आई थी political parties के लिए, वो सारी women की एक एक स्ट्रैंड है फ्रॉम अ डोमिनेटिंग पावरफुल मेल पॉलिटिशियन से। कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है उनके फैमिली ओरिएंटेशन, मतलब एक मेल मेंबर उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका रहा है, मेल मेंबर पार्टिसिपेट करता रहा है पॉलिटिकल इलेक्शंस में प्रोमिनेंटली। सो इट इज नॉट समथिंग दैट इज यू नो एन एनॉमली। उनके घर में पॉलिटिक्स चलती आ रही है, इट्स नॉट अ रेगुलर वुमेन जो आ रही है, बट रादर उनके घर में ये चलता आ रहा है। एंड तो ये सारे वुमेन्स आई हैं, उसके एग्जांपल उसने दिए हैं। ऑन होल लर्विन थीसिस दैट इज जेनेसिस ऑफ वुमेन holding Pakistan's politics in general become even clearer if we analyze the Pakistan general 2024 Pakistan general elections। देखो ऑर्थर घूम के प्रीवियस हिस्ट्री बता के वापस से आ गया जहां वो करंट प्रॉब्लम बता रहा था। ठीक है, फ्रॉम फातिमा जिना टू लियाकत अली खान to Benzari Bhutto, currently elected women parliamentarians, a majority of women politics are reliant on the name and fame of their male relatives।
यहाँ उसने मेन बात कही, वो जिनके एग्जांपल्स बता रहा है इंस्टेंसेस टू प्रूव दिस पॉइंट इज, ऑथर का मेन पॉइंट पता है क्या है, कि they all of them are drawing strands and all of them are drawing their influence from particular male relatives that has been prominent in politics and their political background that they have. And author uses these instances, author is using these instances, फातिमा जिन्ना एंड रियाना लियाकत अली खान, इन सबके इंस्टेंसेस यूज करके ऑथर कोशिश करते हैं कि वो बता पाए कि उनका मेन पॉइंट को वो स्ट्रॉन्ग करते हैं इन एग्जांपल्स को देके, ठीक है, विद आर्ग्यूबली एक्सेप्शंस, बेनजीर भुट्टो वाइफ ऑफ एंड डॉटर ऑफ, अब इट इज मेकिंग सेंस कि डॉटर ऑफ हिम एंड वाइफ ऑफ हिम का क्या मतलब था, वुमेन लीडर्स एंड पाकिस्तान पॉलिटिक्स आर अनेबल टू मेक अ नेम फॉर देमसेल्व्स independent of their husbands and fathers, other male relatives. Okay, they lack any political power of their own and are either vehicles of their family legacy, proxy candidates, or men who are unable to contest for some reason. So now the author has said कि okay, political representation कम था, political participation in elections यानी वोटर टर्नआउट भी कम है, एंड जो गिनी चुनी बात है हम उसको पॉजिटिव बता रहे हैं, बट उस एक्चुअली उस पॉजिटिविटी के पीछे की पॉइंट ये है कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं आई है खड़े होने के लिए, जो कैंडिडेट्स आए हैं वो या तो पॉलिटिकल कैंडिडेट बैकग्राउंड से हैं, एंड वो इसलिए आई हैं क्योंकि शायद से वो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं, दे आर जस्ट अ मियर फिगर हेड, और बिकॉज जो मेल मेंबर्स थे वो कंटेस्ट नहीं कर पाए फॉर सम रीजंस, मेल मेंबर्स नहीं खड़े हो पाए, तो दे वांटेड टू कंटिन्यू देयर पॉलिटिकल लेगेसी, देयर पॉलिटिकल डोमिनेंस, तो उन्होंने विमेन मेंबर को तब एज एन लास्ट रिजॉर्ट वुमेन को पॉलिटिकल पार्टी भेजा है, सीट पे बिठाया है, अदरवाइज दिस वॉज नॉट हैव बीन देयर फर्स्ट प्रेफरेंस एंड दे वुड नॉट हैव चोजन वुमेन मेंबर्स, ठीक है। अगर तुम समराइज करोगे ना इस पूरे पैसेज को, ऑर्थर का की पॉइंट ये है, ठीक है, अगर तुम इस पॉइंट को समराइज करोगे तो ऑर्थर का की पॉइंट यही है कि ओके, दे आर लैकिंग एनी पॉलिटिकल पावर, एंड जो भी मेंबर्स आए हैं इट इज बिकॉज वो मेंबर्स के पीछे उनकी फैमिली वाले थे, ठीक है, यही उसका मेन पॉइंट है। तो अब नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू आंसर द मेन आर्ग्यूमेंट और ये वाले क्वेश्चंस, राइट, तो लेट अस जस्ट आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है, ऑलराइट, हाँ, ओके, what is the main argument that the author intends to put forth? Author stresses on the importance of women participation in Pakistan politics. Author emphasis on the pattern of dynastic women dominance in Pakistan politics. Author highlights the lack of participation and inclusion of women in Pakistan politics. The author expounds the statistics of defining a eclectic political landscape for women in Pakistan politics. Now, काफी सारे ऑप्शंस हमें सिमिलर भी लगेंगे, तो अंडरस्टैंड हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, ऑलवेज गलत आंसर के गलत होने की एक वजह होती है एंड सही आंसर के सही होने की एक वजह होती है, इसमें पर्टिकुलर वर्ड जिसको सही बना रहा होता है और गलत ऑप्शन में पर्टिकुलर वर्ड होता है जिसे गलत बना रहा होता है। अब हम वो कैसे ढूंढेंगे, ऑथर इज एक्सपाउंडिंग द स्टैटिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग द इक्लेक्टिक पॉलिटिकल लैंडस्केप, इज द लैंडस्केप इक्लेक्टिक फ्रॉम एनीवेयर, डू यू गाइस थिंक? नो, इनफैक्ट बहुत ही मीगर पार्टिसिपेशन है, मतलब इट्स ओनली 12%, राइट, कहीं उसने डेटा दिया था जब, तो इक्लेक्टिक कैसे हुआ, इक्लेक्टिक का मतलब है डाइवर्स, दैट इज अगेन वोकैबुलरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ दे वांट टू मेक ऑप्शन कॉम्प्लेक्स फॉर यू दे पुट फॉरवर्ड द वोकैबुलरी वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर यू, एंड कोई कोई वर्ड ऐसा होता है ना इट इज वेरी हार्ड टू इवन गेस द कंटेक्चुअल मीनिंग, इन दैट केस vocabulary strengthening is the only great activity that you can do. So option D तो नहीं है, ठीक है। The author is highlighting the lack of participation and inclusion of women in Pakistani politics. ये ऑप्शन तो सही लग रहा है यार, मतलब ऑथर यही तो कर रहा है, author is emphasizing on the pattern of dynastic women and dominance in Pakistan politics. Well, again, this option is also seeming correct because yes, dynastic women का क्या मतलब है, यानी कि वो women which is having a women that are having political backgrounds. तो क्या वो ये नहीं बता रहे कि जितने वुमेन्स आ रही हैं लास्ट पैराग्राफ में, क्या उसने ये नहीं बताया था कि जितने वुमेन आई हैं उनके सबके कोई ना कोई पॉलिटिकल मेल रिलेटिव्स रहे हैं, बताया था। Author is stressing on to the importance of women participation in Pakistan politics. Now look, even though हम समझ सकते हैं कि ऑर्थर इस दिशा में शायद से जा रहा होगा, बट ऑर्थर एग्जैक्टली अभी तक इस दिशा में नहीं गया है। ऑर्थर इज नॉट आस्किंग फॉर इंपॉर्टेंस और इज नॉट टेलिंग अबाउट सम लेक्चर प्रीचिंग की वुमेन की पार्टिसिपेशन कितना इंपॉर्टेंट है, बट रादर ही इज आइडेंटिफाइंग अ पैटर्न, ही इज ट्राइंग टू टेल थ्रू एन इंस्टेंस कि कितना पार्टिसिपेशन है। अब तुम देखो ए और डी तो वही एलिमिनेट होता था, इंपॉर्टेंस और इक्लेक्टिक, ये वर्ड्स के इन टर्म्स के कारण, इन फ्रेजेस के कारण, ठीक है। बी एंड सी में कंफ्यूजन है,
क्या गलत सही आंसर हो सकता है? नाउ सी, author is emphasizing on the pattern of dynastic women politics in Pakistani politics comes later in point of the passage, while he highlights two things: that there is a lack of participation because there is less women turnout as well, and there is inclusion of women in politics also, that is also less because only जो women आ रही हैं वो कोई ना वो प्रोमिनेंट फैमिली से आ रही है, एंड वोटर टर्नआउट भी कम रहा है। उसने बोला डिस्पाइट रजिस्ट्रेशन कम हुआ है फिर भी वोटर टर्नआउट थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमैटिक रहा है। ऑथर केटर्स टू बोथ ऑफ दीज थिंग्स इन हिज पैसेज इंटायरिटी में, पैसेज में। वेयर एज ये जो पैटर्न ऑफ डायनेस्टिक वुमेन जो है वो इट कम्स एट द लेटर पॉइंट ऑफ पैसेज, वेयर आई शो यू। ओके, आई शो यू कि कहाँ इसकी बात हुई है। लुक, यहाँ पे वो बात करता है author last condition it has signaled there are only 11% total contesting candidates for women voted and again participated in the electoral procedure, right? And if you see here the whole यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे जो पॉइंट आया है ना कि देयर हैव बीन लिंक्ड टू पावरफुल पॉलिटिशियन मेंबर्स, एंड यहाँ पे उसके एग्जांपल्स दिए हैं। ये जो पैटर्न बताना चाह रहा है ना, और द ऑप्शन नंबर डायनेस्टिक वाला, ये लेटर पॉइंट ऑफ द पैसेजेस में आता है, आगे के पैराग्राफ्स में आता है। ये वाला पॉइंट की इंक्लूजन कम होलिस्टिक है, ये पॉइंट एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अग्रीड। लेटर पॉइंट ऑफ पैसेज में आता है, इट इज क्वाइट नैरो क्योंकि इट इज हैज बीन स्पोकन अबाउट ओनली इन फ्यू ऑफ द पैसेजेस, मतलब पैसेजेस के कुछ पैराग्राफ्स, सम ऑफ द पैराग्राफ्स। बट अगर तुम देखो वो ऑर्थर ऑल्सो स्ट्रेस अपॉन दी वोटिंग एंड द नॉट जस्ट अबाउट रिप्रेजेंटेशन बट ऑल्सो अबाउट द वुमेन वोटर्स एंड कैंडिडेट्स, राइट? सो विच इज द मोर प्रोमिनेंट आंसर? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राइट? बिकॉज ऑप्शन नंबर सी इंक्लूड्स both of the things that author has attempted to speak, that is for participation as well as for inclusion, right? So B में कुछ गलत नहीं है, but B is quite a narrow option. It's called a narrow option. What it is called? It's called a narrow option. Okay. Oh, I'm so sorry for this. Narrow. It's called a narrow option. Whereas option number B is quite holistic in its approach because it speaks for both points. It addresses both points that the author caters to. ठीक है, there are two ideas that author is talking about. One is about the low voter turnout also that author is meaning about, and then less obviously the participation is also problematic. All right, okay. What is the tone of the author? Now look, whether author is neutral, whether author is factual, whether author is objective, एंड नन, तो नन तो हटा दो क्योंकि नन नहीं हो सकता। अगर ऑल होता तो हम फिर भी बोलते कि भैया हो सकता है, बट नन तो नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली इनमें सारा ही सब कुछ इसका में है, सारे ही इसका आप देखोगे मिलेगा आपको एसेंस। न्यूट्रल, इज द ऑथर न्यूट्रल? यस। इज द ऑथर फैक्चुअल? यस। ऑथर क्या बायस्ड लगा तुम्हें कहीं से भी? नहीं, ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट he is trying to focus कि हाँ जितने मेल मेंबर्स होते हैं फीमेल भी रहे हैं, he is quite neutral in his approach, he is indifferent, you can say, वो ज्यादा biased नहीं है। but does that only thing makes it neutral? no, right? अगर वो न्यूट्रल होता तो वो थोड़ा सा मेन की भी बात करता, ट्रांसजेंडर्स की भी बात करता, LGBTQ कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन की भी बात करता। तो एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने के रीजंस तो हैं हमारे पास। फैक्चुअल, फैक्ट्स तो बहुत थे यार पैसेज में, ये तो मैं तुम्हें भाई बता रही थी अभी कि हाँ फैक्ट्स बहुत हैं, इंफॉर्मेशन हैज बीन सैंडविच्ड, right? So much of data given in the passage, right? And I again revert back to the passage for you guys. Just a minute. Like, see, look at it. कितना सारा डेटा दिया ना, 11%, 49%, 839 women on this February, on these many, Jangarwar 22, they are even citations here, they are even given like so many examples here, they are given staff reports here, right? So there is so much of data given, right? You can't deny the fact कि factual तो है information, but then अंडरस्टैंड, क्या ऑथर का कोई फैक्चुअल होने के साथ साथ क्या ऑथर न्यूट्रल रहा है कुछ हद तक? हमने बोला था हाँ न्यूट्रल तो रहा है ऑथर, राइट? ऑथर न्यूट्रल कैसे रहा है? क्योंकि ऑथर ने कहीं ना कहीं इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करने की कोशिश तो की है। अगर सिर्फ तुम न्यूट्रल ले लेते तो मैंने तुम्हें बताया कि वो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स और मे बी LGBTQ कम्युनिटी कारण गलत हो सकता था। फैक्चुअल अकेले बोलोगे, अगेन सिर्फ फैक्ट्स की बात नहीं की गई है और पैसेज में ऑथर इज हैविंग अ मिक्स ऑफ न्यूट्रल एंड फैक्चुअल approach. That is, author is quite objective in his approach. He's trying to put forth exact data. He's trying to be very neutral. He's not showing a biased approach. He's showing a lot of facts and statistics so as to prove himself that he is lacking any sort of bias approach, and he has been quite objective in his information. तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है
ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बिकॉज अगर हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं तो ऑब्जेक्टिव इन दोनों ही पॉइंट्स को कैटर कर लेता है, दैट इट इज न्यूट्रल एज वेल, इट इज फैक्चुअल एज वेल, एन ऑर्थर इज जस्ट ट्राइंग टू बी फेयर इन हिज पॉइंट। बहुत ही नैरो डिफरेंस है एक्चुअली इसमें, इनफैक्ट काफी पेटी डिफरेंस है। तुम फिर न्यूट्रल बोलो फैक्चुअल बोलो एक ही बात है, बट अगर तुम्हें एलिमिनेट करना ही हुआ और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फाइंड करना ही हुआ, कैसे करोगे, ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्लैरिटी इन टोन वर्ड्स और ये होगी ना, कई कई जगह आप देखोगे हो सकता है किसी ने फैक्चुअल बोल दिया हो सकता है क्लैट कंसोर्शियम में सबकी सब्जेक्टिविटी का डिफरेंस यही आ जाता है, जो एक एक मार्क का डिफरेंस हो जाता है, जो हम कहते हैं कि क्लैट लक का गेम हो जाता है कभी कभी सब्जेक्टिव पेपर के कारण, तो इसलिए कि मैंने ए मार्क किया बी मार्क किया, दोनों में डिफरेंस था ही नहीं ज्यादा, सी मार्क किया बी मार्क किया, दोनों में डिफरेंस था ही नहीं ज्यादा, विच हैपेंड इन क्लैट 2025 की काफी सारे ऑप्शन सिमिलर होने के कारण वो थोड़ा सा तुक्केबाजी हो जाती है, राइट। समटाइम्स इट इज फेयर क्योंकि वो काफी स्क्यूड डिस्टिंक्शन मांग रहा होता है, बट समटाइम्स अगेन यू शुड नो कि टोन वर्ड्स को जब पढ़ो आगे, तो अगर तुम्हें बहुत सारे टोन वर्ड्स सिमिलर दिखेंगे तो जब तुम टोन के क्लस्टर्स बनाओगे ना आगे चल के, ओके, जब तुम टोन के क्लस्टर्स बनाओ ना आगे चल के, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आगे क्लस्टर्स जब बनाने से पहले भी तुम उसके सही डिस्टिंक्शंस पूछ लो, ठीक है, बिकॉज समटाइम्स तुम्हें लगेगा कि सटायर और आयरनी तो सेम टोन वर्ड्स हैं, बट नहीं है, सटायर और आयरनी में डिफरेंस है, ओके। जिस दिन हम टोन्स की बात करेंगे उस दिन हम टोन की भी एक डेडिकेटेड सेशन ले लेंगे, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि वाई दोनों में क्या डिस्टिंक्शन है, बट यस दीज थिंग्स कांट बी बंडल्ड टुगेदर, ठीक है। जैसे आप पॉलेमिक कंटेंशियस कंट्रोवर्शियल को एक साथ क्लब करके टोन वर्ड्स रिमेंबर कर सकते हो, आप सटायर एंड आयरनी को नहीं रख सकते हो, राइट, बट आप सार्डोनिक और सटायर को रख सकते हो, आप मॉकरी आयरनी को साथ नहीं रख सकते हो, राइट। आप ये चीजें आपको समझनी होंगी कि टोन वर्ड्स में भी काफी डिस्टिंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला है कि आपको जब पढ़ रहे हो तो ट्राई टू गूगल एवरीथिंग बिफोर यू से कि ये सिनोनिम है, हो सकता है आप अज्यूम कर लो कि वो चीजें सेम हो, बट वो चीजें सेम नहीं होंगी, हम टोन का डेडिकेटेड सेशन जरूर लेंगे, आई एक्सप्लेन यू कि टोन में क्या डिस्टिंक्शन है, ऐसे ही मैं आगे और आगे के जो सेशंस होंगे उनमें और टोन के क्वेश्चंस होंगे ही, एंड उन टोन के क्वेश्चंस में आई ट्राई टू कीप द ऑप्शंस वेरी नैरो and very similar so that you have like a very fine idea of the you know of the of the of the distinction between the tone words, and also और जो बाकी के टोन वर्ड्स होंगे आई ट्राई कि तुम्हें उसी पॉइंट पे उसके सिनोनिम्स लिख के बता दो, so that you have the synonyms and the distinctions in your mind as you are solving these practice sessions, all right, so please keep following the upcoming passages और आगे के practice sessions as well, okay, which of the following word is used as bequest, all right, I told you what approach you can apply here, देखो restoration, पोलराइज्ड, अगर तुम इनको देखोगे इनके फॉर्म ऑफ वर्ड्स कितने अलग हैं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट के उसमें दिया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह दिया हुआ है रेस्टोरेशन, राइट, पोलराइज बी टू फॉर्म दिया हुआ है वर्ब का, तो और लेकिन अगर तुम बीक्वेस्ट को देखोगे तो इट इज गिवन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट, तो ये दोनों यहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं कि ये भैया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्म में दिया हुआ है अगर, ठीक है, नाउन फॉर्म में दिया है, और ये बी टू वर्ब फॉर्म में दिया है, क्योंकि यहाँ पे बी टू नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब यूज किया गया है, प्रेजेंट वर्ब यूज किया गया है, ठीक है, बी वन फॉर्म ऑफ द वर्ड यूज किया, तो बी टू तो नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, नाउन फॉर्म भी नहीं हो सकता, अब हो सकता है कंटेस्ट एंड लेगेसी में डिफरेंस, नाउ इसमें कंफ्यूजन हो सकती थी, तुम कितने भी स्मार्ट हो ये डिस्टिंक्शन कर लोगे बट यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए ऑलवेज लर्न द राइट मीनिंग, लाइक बिक्वेस्ट का मतलब है लेगेसी, ओके, बिक्वेस्ट इज सॉर्ट ऑफ थिंग की जो आपने एक लेगेसी बनाई है, अच्छा, आप इस ये भी चाहते तो आप आपको दिक्कत हो सकती थी लेगेसी इन कंटेक्स्ट में, ये बहुत कॉमन से जिसको मीनिंग नहीं पता है ना वो दिक्कत हो जाती, कंटेक्स्ट भी यूज किया गया है लेगेसी भी यूज किया गया है, और यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट मीनिंग भी नहीं लगा सकते, सो प्लीज डेवलप स्ट्रेंथ, वोकैबुलरी आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी, डू नॉट इग्नोर वोकैबुलरी, और राइट, या सो एंड जस्ट कीप दिस ट्रिक इन माइंड, मोस्टली इतने सारे डिस्टिंक्शंस ऐसे नहीं होते, अगर वो काफी हद तक एलिट में ही अप्रोच काम आती है कि ये नाउन फॉर्म है कि वर्ब फॉर्म है, राइट, तो एलिट में ही अप्रोच काम आती है, वहां से आप एलिमिनेट कर सकते हो, सो लर्न दिस अप्रोच एज वेल, हाउ टू एलिमिनेट इवन इन वोकैबुलरी क्वेश्चंस में भी मोस्टली, पर आपको वोकैबुलरी सीखनी पड़ेगी, दैट इज रियल, यू नो, ओके, सो देयर इज अ लॉट ऑफ, जस्ट अ मिनट, ओके गाइस, या, ऑलराइट, चल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑलराइट, ठीक है, व्हाट इज द कॉन्ट्रडिक्शन दैट हैज बीन लेड डाउन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, ठीक है,
author begins to argue that there is no participation in politics of Pakistan, but then later contradicts hypothesis by stating that there are women leaders with political backgrounds. Well, at one instinct ये सही sound तो करता है, not that problematic, right? The author contradicts his assessment that there is a lack of participation in female politician. Okay, again a perfect answer, so quite similar, right? The author contradicts while he states the statistics which does not support his purport. Again, if you see जनरलाइज्ड वे में अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो हाँ, ऑथर कॉन्ट्रोडिक्ट तो करता है हिज स्टैटिस्टिक्स स्टेटिंग द स्टैटिस्टिक्स, जो वो एक्चुअल डाटा स्टेट करता है, दैट डेटा एक्चुअली आगे चल के उसे काउंटर कर देता है जो वो परपोर्ट यानी कि जो वो क्लेम बनाना चाहता है। बिकॉज यस, आगे ऑथर एक वोटर टर्नआउट कम बताता है, आगे बताता है पार्टिसिपेशन कैसे कम है, उसके परसेंटेज देता है, बट देन यस, उस डेटा को स्टेट करने के बाद आगे ऑर्थर एक अप्रोच बोल देता है ना कि नहीं, देयर इज अ पार्टिसिपेशन इन वुमेन। तो हाँ, ये आप कह सकते हो जनरलाइज वे में तो ये किया है, पर क्या हम जनरलाइज आंसर प्रेफर करेंगे जब हमारे पास दो ऐसे ऑप्शन है जो डायरेक्टली पैसेज को कैटर कर रहे हो, पैसेज से मिल रहे हो? ऑब्वियसली नॉट। तो सी को आप वहां से एलिमिनेट कर सकते हो, उसमें कंफ्यूज मत होना। ऑथर इज कंसिस्टेंट इन हिज अप्रोच एंड देयर exists no contradiction as to what author intends to prove. No, look, जब वो तुमसे कॉन्ट्रोडिक्शन प्रूफ कर पूछ रहा है ना, तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंट तो नहीं होगा ऑर्थर कहीं ना कहीं, ठीक है? तो डी भी तुम वैसे एलिमिनेट कर सकते हो। हमेशा से थंब रूल अप्रोच मत लेना। हो सकता है कि देयर इज नो कॉन्ट्रोडिक्शन एंड वो तुम्हें सिर्फ टेस्ट कर रहे हो। इट कैन, एनीथिंग कैन हैपन, यू कांट इमेजिन कि कौन सा क्वेश्चन मेकर कैसे ऑप्शंस बना रहा है, क्या सोच के बना रहा है, एंड व्हाट द ऑप्शन क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? सो बी केयरफुल ऑफ दैट। अब यहां से देखो, ए एंड बी में देखो, ही इज कॉन्ट्रोडिक्टिंग इन हिज असेसमेंट दैट इज लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, एंड अगेन देयर इज नो वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, बट देन ही इज कॉन्ट्रोडिक्टिंग बाय द हाइपोथेसिस दैट देयर आर वुमेन लीडर्स विद पॉलिटिकल बैकग्राउंड, राइट? बट लुक, द प्रॉब्लम हियर इन द टर्म इज नो वुमेन पार्टिसिपेशन। नो, ये जो नो वर्ड है ना, वो ये नहीं कहता नो वुमेन पार्टिसिपेशन है, वो इनफैक्ट पता है क्या कहता है? लेस वुमेन पार्टिसिपेशन है। वो कहता है लेस वुमेन पार्टिसिपेशन है, वो ये नहीं कहता नो वुमेन पार्टिसिपेशन है, वो कहता है लेस वुमेन पार्टिसिपेशन है। तो यहाँ पे अगर नो नहीं लिखा होता, लेस अकेले लिखा होता, तो कोई दिक्कत की बात तो होती नहीं, बट यहाँ पे क्या लिखा है? नो वुमेन पार्टिसिपेशन। इसलिए ये चीज गलत है, क्योंकि आप पैसेज के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, आप पैसेज के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर यहाँ पे लिखा होता लेस वुमेन पार्टिसिपेशन बट देन ही लेटर इन देयर पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स, वो हो सकता है स्टेटमेंट में आपको लगा हाँ वो लेस वुमेन जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, मे बी इट साउंड राइट, यस, बट देन पैसेज डज नॉट से देयर इज नो वुमेन पार्टिसिपेशन एट ऑल। रादर पैसेज बोलता है कि यस 12% जो भी वो नंबर देता है, ही सेज यस देयर इज अ वुमेन पार्टिसिपेशन, दैट इज वेरी 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 स्लो, बहुत कम है, वेरी स्क्यूड, बट देन देयर इज अ पार्टिसिपेशन एंड दैट मेक्स बी एज द राइट चॉइस। Okay, that makes B as the right choice. Question 5. What is the anomaly that author speaks in pre-Imran Khan regime? All right. ये मैंने अंडरलाइन भी करवाया था, हो सकता है तुम आगे चल के भूल जाओ, तो इसलिए पैसेज में हमेशा अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना कि वेयर दी ऑथर ने इसके बारे में बात करी है, तो आपको फिर क्या होगा ना, रिवर्ट बैक करने में दिक्कत नहीं होगी। सो ए ऑप्शन इज, डिस्पाइट देयर बीइंग नो प्राइम डिस्कोर्स रिगार्डिंग द वुमेन रिप्रेजेंटेशन देयर वाज एन इंक्रीमेंट इन वोटर टर्नआउट, राइट? ऑल राइट, हाँ बिल्कुल, उसने कहा था देयर इज नो मेन स्ट्रीम डिस्कशन रिमेंबर इन द पैसेज, बट देन ही सेज यस डिस्पाइट ऑफ दैट वुमेन वोटर जो थे वो ज्यादा आए थे, turnout was high, even the registration was high, right? Despite there being lesser voter turnout of the women, there was increase in women participation. Okay, बट क्या लेसर टर्नआउट हुआ था? नॉट रियली, वुमेन टर्नआउट तो हुआ था, ठीक है। डिस्पाइट मिनिमम डिस्कोर्स ऑन द लेसर वुमेन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, देयर वर सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशंस इन द वुमेन पॉलिटिक्स। ना ऑथर अगेन नेवर सेज कि सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन है, ऑथर कॉल्स इट लेस रिप्रेजेंटेशन, एंड इवन मेन कोई डिस्कोर्स नहीं हुआ है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो उतना नहीं है सफिशिएंट। उसके बावजूद ऑथर नेवर स्पीक्स फॉर दिस थिंग कि इस बात पे डिस्कोर्स नहीं हुआ कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन कम है, इनफैक्ट डिस्कोर्स इस बात का नहीं हुआ है कि वोटर टर्नआउट कम है, ठीक है? सो सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, बिकॉज जो कॉन्ट्रडिक्शन वो बात कर रहा है वो पैसेज में नहीं है। द ऑथर इज कंसिस्टेंट इन हिज परपोर्ट दैट देयर इज लेसर वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। वेल, एनॉमली पूछी है, इसका मतलब अगेन इट इज आस्किंग द कॉन्ट्रडिक्शन ओनली, इट इज आस्किंग व्हाट इज अ पैराडॉक्स इन द पैसेज।
ठीक है। तो जब आप कंसिस्टेंट बोलोगे अगेन वो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट वर्ड के कारण ये ऑप्शन गलत है, बिकॉज ऑप्शन, और वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, वो पहले बोलता है थोड़ा पार्टिसिपेशन को लेके, आगे चल के वो बातें बदलता है। ऑर्थर कहता है कि देयर हैज बीन लेसर बट देन अगेन वोटर टर्नआउट बढ़ता है। एंड ऑर्थर ने की है कई जगह दोहरी बातें हैं, देयर इज कॉन्ट्रोडिक्शन देयर इंडीड, बट देन अगेन ये कॉन्ट्रोडिक्शन जो इस ऑप्शन में बात की है वो पैसेज में नहीं है। ठीक है। सफिशिएंट वर्ड के कारण ये काउंटर, ये हम पता लगा सकते हैं सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन तो ऑर्थर ने कहीं बोली ही नहीं है। तो अगेन उस वर्ड के कारण आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। डिस्पाइट बीइंग देयर लेस वोटर टर्नआउट देयर हैज बीन इंक्रीज इन वुमेन पार्टिसिपेशन, बट देयर वाज नो लेसर वोटर टर्नआउट, इन फैक्ट देयर वाज वोटर टर्नआउट बढ़ा था। इस बात पे चर्चा नहीं हुई कि वोट करने महिलाएं जा नहीं रही, बट फिर भी वो महिलाएं आई थी सामने के लिए। तो इस दैट मेक्स ऑप्शन नंबर ए एज द राइट ऑप्शन चॉइस हियर। राइट। सो यस अगेन हाईलाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर किस पर्टिकुलर वर्ड की वजह से वो ऑप्शन गलत हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, ओरिएंटेशन क्या है। ट्राई टू कंस्ट्रक्ट योर ओन लॉजिक। ठीक है, इसको फिर से आप सॉल्व करना 2-3 दिन बाद, टेलीग्राम पे ये आ जाएगा, आप इसको फिर से सॉल्व करिएगा, आप फिर से कोशिश करिएगा कि आप सही क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाए विथ करेक्ट अप्रोच, बिल्डअप करने की कोशिश करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोशिश करिए कि आपके पास प्रॉब्लम थोड़ी कम आए इन सब चीज़ों में। यस विद दैट आई वुड से आप प्रैक्टिस सेशंस पे ध्यान दें, कोशिश करिए कि आप रिवीजन कर सकें। With that, we'll come to end of this session. If you have any doubt, please do write in the comment section what doubt you are having. All right. Yeah. Thank you so much.